হিমন্ত বিশ্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নে মেনেজাৰ? উগ্ৰপন্থীক মেনেজ কৰিছিল নেকি হিমন্তই? মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ মাটি কেলেংকাৰীৰ সত্য জানিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে। মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'ব লাগিব। অসমৰ মাটি গুগ্ৰাসে গিলিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ বিচাৰ হ'ব লাগে। আজি ভাৰত জোড়ো অভিযানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক যোগেন্দ্ৰ যাদৱে গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা মালিকানাধীন প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি তাৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা 10 কোটি টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য লাভৰ বিস্ফোৰক খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল অসমৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে। তাৰ পাছৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ কথিত কেলেংকাৰীক লৈ যুযুধান ৰূপ ধাৰণ কৰিলে বিৰোধীয়ে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ লগত এই বিষয়ক লৈ খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী নামি পৰিব লগা হৈছিল টুইটাৰ যুদ্ধত। তাৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত 10 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ দিব বুলি সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' বাৰ্তা যোগে ৰাজহুৱা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীগৰাকীয়ে। আজিৰ সংবাদমেলত যোগেন্দ্ৰ যাদৱেও আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তক। তেওঁ কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নে মেনেজাৰ? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ ওপৰত উত্থাপিত অভিযোগৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। यहाँ असम जो देश में हो रहा है उसका बहुत भद्दा स्वरूप हमें असम में भी दिखाई देने को मिल रहा है। मैंने कल कहा था कि असम के मुख्यमंत्री की वही भूमिका है जो दिल्ली में अमित शाह की, और सब लोग जानते हैं अमित शाह किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हिमंत बिस्वा शर्मा उसी तरह के कामों के लिए, उसी तरह के हथकंडों के लिए यहाँ पे भी प्रसिद्ध हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के मैनेजर हो गए। मणिपुर में कुकी अंडरग्राउंड से रिलेशनशिप बनाना हो या बाकी जगह मैनेजमेंट करना हो, ये सब काम हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय बीजेपी के लिए कर रहे हैं। वो असम जिसका मुख्यमंत्री कभी खड़ा होकर जवाहरलाल नेहरू को भी बता देता था कि नहीं आप सही काम नहीं कर रहे, आज उस असम को दिल्ली से ऑर्डर आते हैं और दिल्ली के ऑर्डर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ राज्य के अपने बड़े बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का सवाल है जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत प्रमुखता से उठा है। मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों का पूरा सच राज्य के सामने आना चाहिए। आरोप हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह जमीन खरीदने के, जमीन पे कब्जा करने के। आरोप हैं 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी के। मैं यहाँ केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। इसका पूरा सच प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। অসমত হিন্দু মুছলিমৰ মাজত ঘৃণা বিয়পাইছে হিমন্তই। পাচলিৰ মাজতো হিন্দু মুছলিম দেখে হিমন্তই। অসমত হিন্দু মুছলিমৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত কৰাই কোনে লুটিব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক মুনাফা? হিমন্তৰ মুখত কেৱল সাম্প্ৰদায়িক বিষ বিয়পে কিয়? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এসময়ত নেহেৰুক প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল, এতিয়া দিল্লীয়ে আদেশ দিয়ে, অসমে আদেশ মানে। যোগেন্দ্ৰ যাদৱে সংবাদমেলত কিছু বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক লৈ কৰা ব্যৱহাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে। তেওঁ কয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কৰাব বিচাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজনৈতিক মুনাফাৰে শাসনৰ গাড়ী সঁচাকৈয়ে সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? যোগেন্দ্ৰ যাদৱে লগতে কয়, এসময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুকো প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল, কিন্তু এতিয়া অসমক দিল্লীয়ে আদেশ দিয়ে আৰু অসমে দিল্লীৰ আদেশ পালন কৰে। আদানীৰ টকাবোৰ আচলতে বিজেপিৰ টকা। বিজেপিয়ে হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰা টকাবোৰ আদানীৰ নেকি? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰিছে শ শ বিঘা মাটি? আদানীৰ শ্বেল কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰা টকাবোৰ কাৰ? ধনকুবেৰে গৌতম আদানীকো এৰি নিদিলে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে। উল্লেখযোগ্য যে হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চে দেশ জোকাৰি যোৱা এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল, য'ত আদানী গোটে এক বিত্তীয় কেলেংকাৰী কৰাৰ অভিযোগ অনা হৈছিল। ইয়াকে লৈ সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আদানীৰ এই টকাবোৰ আচলতে কাৰ? কেনেবাকৈ এই টকাবোৰ বিজেপিৰ নহয়তো? অবিজেপি চৰকাৰৰ পতন ঘটাই পদুম ফুলাবলৈকে যিবোৰ টকাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, সেই টকাবোৰ কাৰ আছিল? কাৰ টকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ৰয় কৰিছে ইডৰাৰ পাছত সিডৰা মাটি? এই প্ৰশ্ন কৰিলে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে। यहाँ असम में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम घृणा को बढ़ाया जा रहा है,
कहीं उसे देख के संदेह होता है कि यहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे की तैयारी करवाई जा रही है। जिस तरह के बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मुख्यमंत्री देते हैं, सब्जी से लेके, सोचा होगा आपने सब्जी का सांप्रदायिकरण हो जाएगा। वेजिटेबल्स के सवाल पे भी यहाँ के मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं, खुल्लम खुल्ला पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम नफरत, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस प्रदेश में एक शक्ति खड़ी हो जो इस प्रदेश की अस्मिता, असम की एक अपनी अस्मिता रही है, असम की संस्कृति, असम की जो सांस्कृतिक धरोहर है और यहाँ के जितने भी तमाम समूह हैं, आदिवासी समूह हैं, अलग अलग धर्म हैं, जातियाँ हैं, इन सब का एक छोटा सा स्वरूप है असम। मैं कई बार कहता हूँ भारत का माइक्रोकॉस्म है असम। जैसे भारत में जितनी विविधता है वो केवल असम में उतनी सब विविधता है। इसलिए अगर भारत को बचाने की राजनीति करनी है तो वो असम से शुरू होगी। आप बता रहे हैं ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का रिपोर्ट आया है जिसने बताया है कि बीजेपी के पास कितना डोनेशन आया है, पॉलिटिकल डोनेशन, और कांग्रेस के पास और बाकी पार्टियों के पास कितना कम है। लेकिन मेरे दोस्त, असली बात वो नहीं है। वो तो कहते हैं दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो वाइट मनी का हिसाब है, असली मनी वाइट थोड़ी होती है। ये अडानी का खेल क्या चल रहा है? ये पूरे अडानी वाले खेल में सवाल अभी तक ये पूछा गया है कि अडानी का भाई, गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी ने गौतम अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया मॉरिशस से, और वो इन्वेस्टमेंट लीगल नहीं था, करना नहीं चाहिए था, 75% लिमिट से ऊपर था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था। ये छोटा सवाल है। असली सवाल ये है कि मॉरिशस की बेनामी कंपनियों के पास पैसा कहाँ से आया। ये 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जो कि गौतम अडानी की कंपनी में लगा है, ये कहाँ का पैसा है, किसका पैसा है ये? जब आप वो पूछेंगे ना तो आपको पता लगेगा बीजेपी की एक्चुअल प्रॉपर्टी है कितनी। बीजेपी के पास जितना पैसा है वो सिर्फ वो नहीं है जो कि एडीआर की रिपोर्ट में दिख रहा है, दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो तो बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा सा पैसा वाइट में भी रखना पड़ता है। असली पैसा ब्लैक का है। असली पैसे के बारे में प्रश्न ये है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ये अडानी की कंपनी में 30-40 हज़ार करोड़ रुपया किसका पैसा है, कहाँ से आया है? और संदेह ही है, मेरे पास पुष्टि नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप ये लगाया गया है कि ये बीजेपी का पैसा है। बीजेपी का पैसा मॉरिशस से, ब्लैक एंड व्हाइट यही होता है, इसी को कहते हैं लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। ये है ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सेबी जांच क्यों नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा जांच करेंगे तो नीचे कमल का फूल निकल आएगा? ये प्रॉब्लम। तो असली दिक्कत ये है कि ये 3,000 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है इस वक्त जितना पैसा लगाया जा रहा है। कर्नाटका की सरकार जब टूटी थी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी गई, गोवा में सरकार तोड़ी गई, मणिपुर में सरकार बनाई गई, सब कैसे हुआ? कितने पैसे इसके अंदर यूज हुए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैसे और राजनीति के घालमेल से है, और इस वक्त उसका सबसे बड़ा चेहरा इस देश में कॉरपोरेट कैपिटल का सबसे बड़ा डिफेंडर और उसका सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी है। और बिल्कुल डायरेक्टली, और गौतम अडानी का सारा मामला इसलिए जुड़ा है। लोग कहते हैं कि गौतम अडानी को बीजेपी का आशीर्वाद है। ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री गौतम अडानी के दोस्त हैं। जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये है कि दोस्त हैं या कि बिजनेस पार्टनर, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाना चाहिए
और ये सवाल असम में भी पूछा जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जितने संपत्ति के बारे में अनुमान है, जो लोग कहते हैं, मैं तो जांच नहीं कर सकता, लोग कहते हैं पूरे असम में जमीन खरीदी जा रही है, कहाँ से खरीदी जा रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है उसका, इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैसे और राजनीति का सबसे घालमेल इस वक्त बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। और अंतिम बात मैं कहूँगा, इस पे आपकी निगाह न जाए, आप ये ना पूछें कि असम में प्रॉपर्टी कैसे खरीद रहे हैं, इसलिए कहते हैं सब्जी का दाम मुसलमानों ने बढ़ा दिया। अब 3 दिन तक हेडलाइन चलेगी मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप ये ना पूछें कि अडानी और इनके क्या रिश्ते हैं, इसलिए हर वक्त हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ এই প্ৰশ্নবোৰৰ আজিৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ যুগতো কিবা প্ৰাসংগিকতা আছেগৈ নে? শাসক পক্ষই উত্তৰ দিবনে এই কঠোৰ প্ৰশ্নবোৰৰ? সেয়াহে এতিয়া মাটিৰ মূল্যতকৈ অধিক মূল্যৱান প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।